morning. It's indeed a great pleasure to welcome you all for this great occasion on the launch of the awareness program on Mission AF Care. A lot more has been discussed and debated on hypertension, diabetes, cholesterol, etc. for quite a long duration of time by most of the eminent medical fraternities across the country. This is one of the novel initiation for the first time in India, which we are initiating and launching today, which is the awareness, the patient awareness on AF care and the protection. To know more about it, to discuss more about it, to create an awareness, we have the eminent faculties across the country in their respective fields, the giants in the respective fields who are present here to discuss the same. And it's a great honor to welcome Dr. H.K. Chopra, Dr. J.P. Sani, Dr. Narasimhan, Dr. Sudhir Kothari, Dr. Vivek Kumar to be a part of this panel and to create the awareness to the public about AF care. So over to Vishali to take over the further proceedings and introduce the panel. Thank you so much, Johnny. जैसा मेरे कॉलीग जॉनी एडविन जो इप्का से हैं उन्होंने बताया, एट्रियल फिब्रिलेशन एक अनियमित और अक्सर तेज हृदय गति का कारण है जो तब होता है जब आपके दिल के दो ऊपरी कक्ष केओटिक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का अनुभव करते हैं। परिणाम एक तेज और अनियमित हार्ट रिदम है। एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ एक प्रमुख चिंता हृदय के दो ऊपरी कक्षों में रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स का विकसित होना भी है। वर्ल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन डे के अवसर पर आज हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ पैनल है जो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। फैमहेल्थ पर आज हमारे सम्मानित वरिष्ठ और अत्याधुनिक कुशल पैनल के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन का सत्र मॉडरेट करेंगे डॉक्टर एच.के. चोपड़ा। आज का विषय है मिशन एट्रियल फिब्रिलेशन केयर बाय एकेडमिक पार्टनर इप्का। सेशन के मॉडरेटर और फैमहेल्थ के मेंटर वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एच.के. चोपड़ा जो सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता मूलचंद हार्ट इंस्टीट्यूट के। ही इज आल्सो द चेयरमैन सीएमई मूलचंद मेडिसिटी, Chairman of the World Wellness Foundation, Country Head AHA, former National President CSI and IAE, Editor-in-Chief of top 10 textbooks of cardiology. Along with him, we have an expert panel of Dr. Vivek Kumar, Principal Director and Chief of Cath Labs, Cardiac Sciences Max Heart and Vascular Institute, New Delhi, Dr. J.P.S. Soni, who's the Chairman, Department of Cardiology at Sir Gangaram Hospital, Dr. C. Narasimhan, Head of Department of Electrophysiology and Cardiologist at AIG Hospital in Gachibowli, Hyderabad. And we have Dr. Sudhir Kothari, Head of Department of Neurology at Pune Hospital and Research Center. I thank all of you for coming here and giving us your time today. And now I hand over to Dr. Chopra to take this session forward. Dear friends, ladies and gentlemen, it's really a great pleasure and honor indeed for me to be here on the platform of Tata Sky Famhealth on a very, very special occasion. And the occasion is launch of Mission Atrial Fibrillation for the first time in the country. This is very, very important because Global Atrial Fibrillation Association is very well known to all of you. They do a lot of programs like Global Atrial Fibrillation Day or Global Atrial Fibrillation Week, and they are all awareness campaigns. At the outset, I express my gratitude and thanks to Mr. Johnny Edwin, Vice President of IPCA, to be very firm and very important person to be the forerunner for taking this initiative on behalf of IPCA Laboratories Limited. I also express my gratitude to Asha Kapoor, who is the MD of Tata Sky Famhealth, and Vishali, who just kindly introduced each and every expert faculty on the platform. What is the theme?
what is the theme of today's campaign? Why public should know about atrial fibrillation? I think if you see the theme created by World or a Global Atrial Fibrillation Association is detect atrial fibrillation, protect atrial fibrillation, correct atrial fibrillation, and perfect atrial fibrillation. Very important for a common man. पब्लिक के लिए जानकारी बहुत जरूरी है कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब ये है कि जो पल्स तेज चले और थोड़ी इरेगुलर हो जाए उसे हम फिब्रिलेशन करते हैं, जिसका ओरिजिन एट्रिया में होता है, जो कि आपको वैशाली ने बड़े स्पष्ट रूप में हिंदी में समझाया। और हमारी जो फैकल्टी है बहुत ही एमिनेंट है। They are the eminent figures of India. They are the face of India in the electrophysiology and neurology, a very eminent people who have been very well introduced by Vrishali. The prevalence of atrial fibrillation is directly proportional to the age. As the age advances, the atrial fibrillation becomes higher. I remember about 4 or 5 years ago, I published a book, textbook on atrial fibrillation. And I learned that time इसका जो प्रिविलेज है 2% से लेके 10% तक होता है। It may be 2% at the age of 40, 4% at the age of 50, 6% at the age of 60, and 8% at the age of 70, and 10% when a person is more than 80. कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे इसका परसेंटेज बढ़ते जाता है। और ये भी पाया गया है कि ये मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कई कम होता है, और कई साउथ एशियन स्टडीज हैं जहाँ रिवर्स भी बताया है। आई एम श्योर वी हैव एविडेंट फैकल्टी टू रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चंस वंस वी डिस्कस दिस। अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन is the need of the hour. Atrial inflicted brain attack, heart attack, abdominal attack, eye attack, and ear attack has also been seen. We'll discuss with this in detail over next 45 minutes or so. Even the heart failures are the outcome of atrial fibrillation. इसके बारे में सारी जानकारी अगले आधे घंटे में हमारे पास होगी। What is the agenda today? The agenda is talking about awareness, talking about prevention, talking about early detection, early correction and timely correction, and then perfection campaign is the main agenda of this mission today. We have very eminent faculty and I know all of them very well, especially Dr. J.P. Sani, who is from Delhi, introduced already, who did a big registry, national registry on atrial fibrillation. Dr. C. Narasimhan, who is the world authority on electrophysiology, a very good friend of mine, and a very respectable member in the field of electrophysiology, who is a legend and doyen in the electrophysiology in the world. That's what my image is about him. We have with us Dr. Viveka Kumar, a very dynamic electrophysiologist of Delhi, who had tremendous contribution in the intervention of electrofibrillation, which I'm sure we are going to discuss very shortly. Dr. Sudhir Kothari, who was just introduced from Pune, he is an excellent neurologist who will tell us in details about the neurological manifestation of atrial fibrillation and what we should do or what a common man should know. My first question is to Dr. J.P. Sani. Dr. Sani, sir, you did the first registry, national registry in India on atrial fibrillation. And my question to you is, please tell us how common is atrial fibrillation in India? What are the common causes which you have documented in your registry? And what are the common comorbidities associated with atrial fibrillation? Dr. Sani, sir. Thank you, Dr. Chopra, for inviting us.
एंड यस, हमने एक रजिस्ट्री की थी विच इज द कॉल्ड गारफील्ड रजिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन. ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एट्रियल फिब्रिलेशन की रजिस्ट्री, जिसमें 57,000 से ज्यादा पेशेंट्स ने भाग लिया 35 कंट्रीज से. और थ्रोम्बोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट लंदन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर लॉर्ड कक्कड़. और हमने भी 1400 पेशेंट इंडिया से दिए थे. और ये रजिस्ट्री में हमने देखा कि हमारी कंट्री बाकी 35 कंट्रीज के कंपैरिजन में कैसे डिफरेंट है. तो हमने देखा, एज आपने कहा, कि एज इज वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन. तो हमारी कंट्री में देखा कि हम 5 साल पहले हमें एट्रियल फिब्रिलेशन होती है. हमारी औसत आयु 65 साल थी और बाकी कंट्रीज में अराउंड 70 साल के करीब थी. सेकेंडली, हमने देखा कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हमने कॉमन रिस्क फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं जो एट्रियल फिब्रिलेशन बढ़ाते हैं, सबसे कॉमन है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर. ऐसे पेशेंट्स में कॉमन रिस्क फैक्टर्स के कारण जनरली ये बीमारी बढ़ती है. और आपने सही कहा कि आदमियों में बीमारी ज्यादा होती है, बट जब औरतों में होती है तो उनकी कॉम्प्लिकेशन औरतों में ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस इन द लेफ्ट एट्रियम. सो ये रिस्क फैक्टर्स हमने एनालाइज किए तो देखा कि डायबिटीज और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज और हार्ट फेलियर हमारे कंट्री में ज्यादा थे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और हमें ये सारे रिस्क फैक्टर जल्दी आ रहे थे, 5 से 10 साल पहले आ रहे थे. और इसीलिए ये बीमारी जल्दी आ रही है. और उसका जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी स्ट्रोक के फॉर्म में, जो कि पैरालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन. तो ये जो स्टडी थी, ये उसको हमने 2 साल फॉलो अप किया. और जब देखा कि मोर्टेलिटी, जो डेथ रेट था एट्रियल फिब्रिलेशन से और कोमॉर्बिडिटी से, और जो स्ट्रोक रेट था, ये हमारे कंट्री में ज्यादा था कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये भी हमने इस स्टडी में देखा. तो हमारे कंट्री में इस कंडीशन को जल्दी पिकअप करना, उसको प्रॉपर ट्रीट करना, सही तरह से ट्रीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो इस स्टडी के हिसाब से हमें ये पता चला कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है हमारे कंट्री में और काफी हाई प्रिवेलेंस है. और हमें इसको जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोस करना चाहिए सो दैट हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके और स्ट्रोक और हार्ट की मोर्टेलिटी जो है उसको कम कर सके. Thank you very much, Dr. Sani. You brought a very, very important point. My next question is to Dr. Narasimhan, who is a world authority in this particular field. I would like to ask Dr. Narasimhan, you might have seen so many patients of atrial fibrillation who come to you. What is their mode of presentation commonly? When you're sitting in a clinic or you get what we call as teleconsultation calls all over the world, I'm sure people are consulting you. What are the mode of presentation, how they come to you, and then you come to a conclusion that this, he or she has got atrial fibrillation? Dr. Narasimhan, sir. Thank you very much, Dr. Chopra ji. The younger people more often present with palpitation, some kind of a skipping of the heart, rapid running or racing of the heart is a common presentation among the younger people with atrial fibrillation. But it's highly variable. A large proportion of them in older subgroup present with breathlessness, unexplained breathlessness, and features of heart failure, like leg swelling, decreased urine, flow of urine, and so on and so forth. And the commonest presentation in the elderly is in terms of increasing breathlessness, decreasing capacity to perform their daily activities. And the third group, where the atrial fibrillation remains silent, the first manifestation may be a stroke. So this can be either a weakness of the hand or the leg or loss of speech, can be the first manifestation. They present to the neurologist, and then atrial fibrillation is incidentally detected. And the fourth is patients who present with progressive decline in mentation. This is very common in very old people with cognitive decline. They can present with intermittent atrial fibrillation. So it can present
with features of clots going to different parts of the body. The commonest one to the brain, where the patient with features of paralysis or so on and so forth. If it goes down to the leg, they have a sudden loss of power in the leg and acute pain in one of the limbs, and the limb becomes cold. If it goes into one of the vessels in the abdomen, it can present as sudden severe abdominal pain, and they can present to the emergency room as an abdominal emergency. So the presentation is highly variable. Commonest one is palpitations and breathlessness. I think this is very important. Dr. Narasimhan is told very clearly, even when there is a little mentation problem, कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, कभी डिसोरिएंट हो जाता है, कभी थोड़े टाइम के लिए उसको बोलने में डिफिकल्टी होती है, थोड़े टाइम के लिए ब्लैकआउट हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, they may all be presentation of atrial fibrillation. And he also mentioned that a lot of people, they may get full stroke and they go to a neurologist. Later on we find that the cause of stroke is none other than atrial fibrillation. तो वही डॉक्टर नरसिम्हन ने कहा कि एट्रियल फिब्रिलेशन होगा अगर हार्ट का जो एट्रिया है या जो चैम्बर है उसमें फिब्रिलेशन होगा तो उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन की क्षमता बढ़ जाती है, और अगर क्लॉट बनेगा उसके अंदर तो जब भी फिब्रिलेशन होगा, पल्स फास्ट होगी, तो वो चर्निंग ऑफ ब्लड सेल्स होता है और वो चर्न होके ब्रेन में जा सकते हैं, आंखों में जा सकते हैं, ईयर में जा सकते हैं, और लंग में भी और हार्ट में भी कम होता है लेकिन होता है, और एब्डोमेन में भी. And you may keep on searching for a gallstone or pancreatitis, but the cause is embolism in the mesenteric artery or celiac artery, femoral artery. ये बहुत ही important variable manifestation है. Thank you, Dr. Narasimhan, for your beautiful words of wisdom. Dr. Viveka Kumar is with us. Dr. Viveka Kumar, what you do to fulfill the mission of atrial fibrillation? How early a common man can diagnose? Suppose you have to give a message to a public, तो उनको जानकारी क्या कहेंगे कि भाई कैसे पल्स चेक करें अपनी, कैसे मालूम पड़ेगा उनको एट्रियल फिब्रिलेशन है? Before we talk of a high tech things like loop recorder or talk of Holter, उसके पहले क्या करेंगे? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, डॉक्टर विवेका कुमार सर? So thank you, Dr. Chopra, and I think अभी जैसे हमारे को पैनलिस्ट डॉक्टर साहनी एंड डॉक्टर नरसिम्हन ने भी बताया, ये बहुत ही वाइड प्रेजेंटेशन होता है, ये कि बिल्कुल साइलेंट और एसिम्प्टोमेटिक स्टेज से लेकर के कैटास्ट्रॉफिक, मतलब कि कुछ कैटेगरीज में पेशेंट को बिल्कुल पता ही नहीं चलता और कुछ कैटेगरीज में वो स्ट्रोक या पैर की नमनेस और पेरिफेरल एम्बोलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं. तो किसी को भी अगर हम कहते हैं कि फ्लटरिंग हो रही है, अगर उसको लग रहा है कि हार्ट बीटिंग इरेगुलर चल रही है या दिल के अंदर कुछ धड़कन जैसी महसूस हो रही है, तो उनको एक कम से कम ईसीजी करवा लेना चाहिए या फिर अपने नब्ज को देखना चाहिए कि वो रुक रुक करके इरेगुलर की तरह तो नहीं आ रही है. तो हम लोग कहते हैं कि जैसे एक ही डायग्नोसिस है इरेगुलर पल्स का, और वो है एट्रियल फिब्रिलेशन. हालांकि ये पकड़ पाना कई बार मुश्किल होता है अगर हार्ट बीटिंग काफी स्लो हो एएफ के साथ या काफी फास्ट हो, तो हम ईसीजी का सहारा लेते हैं. जैसे डॉक्टर साहनी ने गारफील्ड रजिस्ट्री से भी बताया कि जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है या एज ज्यादा है, उनके में ये होने की संभावना ज्यादा होती है, और जिन लोगों को पहले एक बार हुआ है उनके में और भी ज्यादा होने की संभावना. तो जैसे पहले किसी को, जिसको कहते हैं पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही एट्रियल फिब्रिलेशन हो और वो सारी जिंदगी उसमें रहे. तो अगर किसी की बार बार फ्लटरिंग हार्ट बीटिंग की होती है तो उसमें ये होने के चांसेस ज्यादा हैं और उनको इसके बारे में अपना रिस्क स्कोर करवाना चाहिए. तो पहले तो हम ईसीजी करते हैं, जैसा आपने कहा कि हम उसको लंबी ईसीजी कर सकते हैं जिसको होल्टर मॉनिटरिंग कह सकते हैं. कई लोगों में उसमें भी नहीं पकड़ में आता तो और भी लंबी ईसीजी करते हैं जिसको कि एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर या ईएलआर कहते हैं. अब हमारे पास इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर्स भी हैं जिसमें बैटरी लाइफ 5 साल तक की भी हो सकती है और जिसमें सारी अरिथमियास पकड़ सकते हैं, और ये एक
ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर से हम इसको स्किन के अंदर चेस्ट वॉल पे इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे कि रेगुलर हार्ट बीटिंग का पता चल जाता है। लेकिन लंबी ईसीजी की जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्रक्स है इसकी डायग्नोसिस का। आजकल कई ऐसे हमारे पास स्मार्ट वॉचेस हैं जिनमें कि ये फीचर इनेबल्ड है, जैसे एप्पल वॉच को एफडीए अप्रूवल मिला था एट्रियल फिब्रिलेशन डायग्नोसिस के लिए, और हमारे साथ अभी इंडिया के भी कई कंपनीज जुड़ गई हैं जो स्मार्ट वॉच बनाती हैं। एक एट्रियल फिब्रिलेशन रिकॉग्निशन टच रॉड की तरह आता है, जिसमें कि दोनों हाथ से आप उसको पकड़े कुछ देर के लिए, तो उसमें भी एट्रियल फिब्रिलेशन की डायग्नोसिस या रेगुलर हार्ट बीटिंग की डायग्नोसिस आ सकती है। बट ये सब चीजें तभी संभव हैं जब हम सोसाइटी को अवेयरनेस में रखें। जब अगर हमारी सोसाइटी, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा और इप्का का कि उन लोगों ने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को किया, तो अगर इग्नोरेंस है तो फिर आप इसके बारे में नहीं भागेंगे और पेशेंट्स जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस के साथ आएंगे हमारे पास, जिनको स्ट्रोक हो चुका होगा। फिर उसके बाद हमें जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप लेना चाहिए कि हर पेशेंट को जिसको भी एट्रियल फिब्रिलेशन होता है उसका चैडवास स्कोर, जो रिस्क प्रोफाइल स्कोर है कि स्ट्रोक होने का, और उसमें अगर हम ब्लड थिनर दें तो उस स्ट्रोक को रोकने का रिस्क प्रोफाइल स्कोरिंग करते हैं, और स्कोर अगर 2 या उससे ज्यादा होता है तो उसके बाद एंटीकोआगुलेशन या खून पतला करने की दवा देते हैं। एंटी प्लेटलेट एट्रियल फिब्रिलेशन में नहीं काम करता है, आई एम श्योर कि अभी आगे इसके बारे में चर्चा होगी। तो आई थिंक अवेयरनेस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए हार्ट रिदम सोसाइटी ने भी और वेरियस कार्डियोलॉजी सोसाइटीज ने भी एट्रियल फिब्रिलेशन अवेयरनेस के बारे में काफी कैंपेन किया है। और आई थिंक डॉक्टर नरसिम्हन जो हम लोगों के एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के काफी जाने माने हस्ती हैं, तो इन्होंने भी इसके बारे में भी काफी काम किया है। तो सडन कार्डियक डेथ की तरह एट्रियल फिब्रिलेशन के ऊपर भी काफी अच्छा अवेयरनेस कैंपेन करना ही सबसे उचित रहेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में समझें और इसके कॉम्प्लिकेशंस के बचने का उपाय करें। Thank you very much, Dr. Vivek Kumar. I think you brought very important points. The next question is to our neurologist colleague, Dr. Sudhir Kothari, who is a very eminent neurologist. Dr. Kothari, I'm sure you are practicing for a pretty long time, and you might have seen thousands of patients coming to you with a stroke or with various neurological manifestation of atrial fibrillation. And ultimately you land up when this patient has got atrial fibrillation and you call our cardiologist colleague. हमारा जो सवाल आपसे ये है कि पब्लिक को क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? एट्रियल फिब्रिलेशन में किसको हो सकता है, किसकी पल्स अगर इरेगुलर हो तो उसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं? अभी काफी मैनिफेस्टेशन डॉक्टर नरसिम्हा ने कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या बताना चाहेंगे? इंफॉर्मेशन काफी चीजें तो बता दी, लेकिन आप उसको री एम्फसाइज करेंगे या आपका कुछ और डिफरेंस डेटा है? आई विल थ्रो सम लाइट ऑन दिस। Thank you, Dr. Saab. I'm very happy to be on this panel. And जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि एट्रियल फिब्रिलेशन प्रॉब्लम एक जगह है और उसका डैमेज दूसरी जगह हो जाता है। सो मेन प्रॉब्लम है हार्ट में, और उसका मैनिफेस्टेशन प्रिडोमिनेंटली मोस्ट डेंजरस मैनिफेस्टेशन ब्रेन में हो जाता है। और बहुत बार ब्रेन के डॉक्टरों को भी ध्यान में नहीं आता है कि पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, बिकॉज जैसा डॉक्टर विवेका कुमार ने बताया, ये एट्रियल फिब्रिलेशन कंटिन्यूअस नहीं होता है ऑलवेज। कभी कभी बीच बीच में हार्ट बीट इरेगुलर होते हैं, अगर वो हम पकड़ नहीं पाते तो ध्यान में नहीं आता है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन है, और उसको अगर हम रूटीन स्ट्रोक की दवाइयां दें तो वो प्रिवेंट नहीं होता है और पेशेंट को सेकेंड टाइम स्ट्रोक होता है। सो हर एक को ये पहली बात तो ध्यान में रखना चाहिए कि स्ट्रोक कभी कभी हार्ट के कारण से हो सकता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में। स्ट्रोक इंडिया में बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 6000 पेशेंट को स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक आता है रोज, और उसमें से अंदाजे 1/6 यानी अबाउट 1000 लोगों को रोज कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक यानी हार्ट के कारण से स्ट्रोक हो जाता है। सो ये बहुत कॉमन बात है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ रेयर या अनकॉमन चीज के बारे में बात कर रहे हैं।
इट इज वेरी कॉमन। रूटीन स्ट्रोक से अलग क्या है, कभी कभी ये कुछ लोगों को 2 मिनट के लिए TIA बोलते हैं हम, 2 मिनट के लिए ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाता है और फिर से शुरू होता है। जब ये TIA 10-15 मिनट के ऊपर या 1 घंटा रहता है तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि पॉसिबली एट्रियल फिब्रिलेशन कारण हो सकता है। TIA अगर ज्यादा टाइम रहता है, पेशेंट को अटैक आया, एक हाथ वीक हो गया और 1-2 घंटे के बाद वो वापस रिकवर हो गया, तो यू शुड थिंक ऑफ TIA। सिमिलरली आंखों में अचानक विजन कम हो गई और 1-2 घंटे के बाद आ गई तो वो TIA हो सकता है। सिर्फ हाथ में पैरालिसिस हो गया, सिर्फ पैर में पैरालिसिस हो गया, सिर्फ बात चेहरे पे हो गया, पूरा एक साइड पे, कभी कभी दूसरे कारणों से भी स्ट्रोक हो सकते हैं। लेकिन एक सिर्फ हाथ में हो गया या सिर्फ पैरों में हुआ या सिर्फ चेहरे पे हुआ, वो लगता है छोटा स्ट्रोक है लेकिन वो कार्डियोएम्बोलिक हो सकता है और अगली बार पेशेंट को बड़ा अटैक आ सकता है। सो ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, जब हम स्ट्रोक होता है तो उसके बाद ब्रेन का एंजियोग्राफी करते हैं, यानी ब्रेन की रक्तवाहिनियां चेक करते हैं। जब ऐसा दिखने में आता है कि किसी जगह में ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, यानी वहां ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुआ है, लेकिन वहां की एंजियोग्राफी नॉर्मल है, फिर ब्लड सप्लाई वहां ब्लॉक क्यों हुआ? सो ऐसे सिचुएशन में हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो शायद हार्ट में से क्लॉट गया था, कुछ देर के लिए वो रक्तवाहिनी ब्लॉक हो गई, ब्रेन डैमेज हो गया और फिर वो क्लॉट पिघल जाता है और जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो एंजियोग्राफी अच्छी दिखती है। सो ऐसे सिचुएशंस में ध्यान रखना चाहिए जब एक साथ 2 जगह में स्ट्रोक होता है, जब हेमरेजिक स्ट्रोक होता है या फिर स्ट्रोक होता है और एंजियोग्राफी नॉर्मल है। यू मस्ट रिमेंबर ये शायद एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। Thank you very much, Dr. Kothari. I think you brought very important points, that there will be variable manifestation. In the COVID era, we have seen a lot of patients coming to us with a heart attack and brain attack. I saw a chartered accountant who was just 31-year-old. His mode of presentation was difficulty in speech and chest discomfort. And he was not a COVID case. When he came to the hospital, we found he had acute MI. He was thrombolized. When he was thrombolized, his speech also improved. So he had infarct in the brain as well as infarct here. And the cause was atrial fibrillation. This was very, very amazing. This is COVID era. So my next question is to Dr. JPS Sani. And the question is, Dr. JPS Sani, sir, please tell the public what are the complications of atrial fibrillation if not treated in your series of registry? And number 2, how common it is in the COVID patients in the COVID era? If you see the whole series of COVID patients, how many of them are atrial fibrillation? What are the mode of presentation? And number 3, how do you prognosticate them? Kindly tell us these 3 important points: complications, prognostication, and atrial fibrillation during COVID era. Dr. Sani, sir. Thank you, Dr. Chopra. The complications डॉक्टर विवेका ने, डॉक्टर नरसिम्हन ने बताई हैं कि जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्ट्रोक इज वेरी कॉमन। लेग में, पेरिफेरल आर्टरी में आ जाता है, एब्डोमेन की आर्टरीज में आ जाता है, तो वहाँ पर गैंग्रीन होने का डर होता है। जिसको हम बोलते हैं कार्डियो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि क्लॉट जो है हार्ट के लेफ्ट हार्ट के चैम्बर में बनता है, वहां से टूट के वो फिर बॉडी में चला जाता है। और हमारे कंट्री में 2 तरह के बीमारी हम देखने को मिल रही है अभी भी, क्योंकि एक तो ग्रुप है जिसमें रोमैटिक हार्ट डिजीज और रोमैटिक वाल्व की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन कॉमन होता है और उससे स्ट्रोक का जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, 17 गुना ज्यादा होते हैं, 17 टाइम्स ज्यादा होते हैं। जो अदर ग्रुप है जिसमें हमने स्टडी की थी, जिसको नॉन वेलुलर एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, जिसमें वाल्व की बीमारी नहीं है और जो एल्डरली पॉपुलेशन विद कोमॉर्बिडिटीज और रिस्क फैक्टर्स के साथ आती है, उसमें 5 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं रिस्क के, एम्बोलिज्म के, जिसमें देखा है। तो ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी हैं और देखा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस जो है ये कोमॉर्बिडिटीज के साथ जुड़ी हुई हैं। जो पेशेंट हार्ट फेलियर के हैं उनको एट्रियल फिब्रिलेशन का चांसेस ज्यादा होता है, जैसे पेशेंट हाइपरटेंशन, डायबिटीज के हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के हैं, उनमें भी ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। तो हमने जो सीरीज में देखा, जो गारफील्ड रजिस्ट्री का डेटा कहता है कि
जो ओवरऑल मोर्टेलिटी जो डेथ हुई इन एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट में 10% जो थी वो एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड थी उनकी कंप्लीशन के साथ, लेकिन 90% जो डेथ थी वो उसके साथ जो को एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज थी, हार्ट फेलियर था, हार्ट अटैक था, पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक थी, ये सब के कारण मोर्टेलिटी बढ़ी थी। सो एक इंपॉर्टेंट लेसन हमने सीखा कि हमें एट्रियल फिब्रिलेशन को पकड़ना है, उसको एडिक्वेटली ट्रीट करना है और उसका कार्डियो एम्बोलिक जो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, लेकिन साथ साथ हमें उसके साथ जुड़ी हुई कोमॉर्बिडिटीज को भी इंपॉर्टेंस देनी है। उनका ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज को ट्रीट करना बहुत जरूरी, क्योंकि मोर्टेलिटी उससे ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए एज ए होल जब हम ट्रीट करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट को, तो हमें दोनों एरिया को देखना है, कोमॉर्बिडिटीज का ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एट्रियल फिब्रिलेशन। आपने कहा कि प्रोग्नोसिस डेफिनेटली डिपेंड करता है विद को एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज के साथ। आपने देखा है एल्डरली पॉपुलेशन है विद मल्टीपल रिस्क फैक्टर, विद मल्टीपल कोमॉर्बिड, जैसे कि हार्ट फेलियर है, रेनल डिजीज है, किडनी फेल हुई है, उनमें मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है। एक यंग बंदा है रिलेटिवली, उसके पास खाली हाइपरटेंशन है एज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, उनमें जो प्रोग्नोसिस होता है जनरली अच्छा होता है। और हमने बड़ा रेयरली ये भी देखा है कि जनरली ये बीमारी हम कहते हैं एल्डरली की है, लेकिन कई बार यंग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास विद एट्रियल फिब्रिलेशन, 40 साल के, 35 साल के, तो बड़ी कॉमनली हमने देखा है बिंज ड्रिंकिंग बड़ी कॉमन होती है। ये बिंज ड्रिंकिंग के कारण भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन का देने की जरूरत नहीं होती, उनको समझाना पड़ता है कि भाई आपकी ड्रिंकिंग हैबिट हैज टू बी चेंज। सो दिस तरह के वेरिएट प्रेजेंटेशन के साथ में प्रोग्नोसिस वेरी था, तो यंग आदमियों में प्रोग्नोसिस हमेशा अच्छी रहेगी। एल्डरली में कोमॉर्बिडिटीज के साथ में प्रोग्नोसिस खराब रहती, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा रहता है। कोविड एरा में हमने देखा कि एट्रियल फिब्रिलेशन का एग्जिस्टेंस मैंने देखने में आया, बिसाइड्स द लंग इन्वॉल्वमेंट, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट वेरियस फॉर्म्स में आई, विच यू ऑल नो अबाउट दैट। मायोकार्डाइटिस भी हुआ, हार्ट अटैक हुआ, वेन में थ्रोम्बोसिस हुआ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कई कॉम्प्लिकेशन आई बिकॉज ऑफ कोविड। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की कॉम्प्लिकेशन भी उनमें आई, क्योंकि जो पेशेंट्स थे जिनमें कोएग्जिस्टेंट रिस्क फैक्टर थे, लाइक डायबिटीज था, हाइपरटेंशन थे, हार्ट फेलियर के थे, किडनी फेलियर के पेशेंट थे, एल्डरली पॉपुलेशन थे, उनमें जो इंसिडेंस देखा गया कि कहेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ के आया कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन, ऐसा कोई डाटा नहीं है, लेकिन यस उसमें आया। और हमें फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनमें कि डी डाइमर ज्यादा था, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज थी, वो ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट में थे, उनको हम एंटीकोगुलेंट दे रहे थे एज ए प्रिवेंशन, एंड देन जिनमें एट्रियल फिब्रिलेशन आ गया, हमें एज ए ट्रीटमेंट की मोडालिटी में उसकी डोज बढ़ानी पड़ी, डोज ज्यादा देनी पड़ी टू प्रिवेंट द एट्रियल फिब्रिलेशन इन दिस पेशेंट। सो दैट्स हाउ वी ट्रीटेड, देयर वाज नो डिफरेंस इन ट्रीटमेंट बिटवीन कोविड एंड नॉन कोविड पॉपुलेशन। Thank you very much, Dr. J.P. Sani. I think you have brought a very important point. There is something like lone atrial fibrillation. And you also mentioned something like alcohol or binge drinking inflicted atrial fibrillation. Very, very common. Once upon a time, it was known as a holiday heart syndrome. Yes. Holiday heart syndrome is same. It's synonymous. It may come with paroxysmal tachycardia or paroxysmal atrial fibrillation. Everything is possible. And I think you brought a very important point. जो लोग को अल्कोहल से इन्फेक्टेड होती है तो वहां एंटीकोगुलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक ऑल दोस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक। वहां अल्कोहल कम करना है, आपको बंद करना है, ना कि एंटीकोगुलेंट शुरू कर देना है। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरसिम्हा है। आई थिंक डॉक्टर नरसिम्हा, आई आस्क यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वंस वी नो द सिम्टम्स, वंस वी नो द क्लिनिकल फीचर्स, once we diagnose and we investigate the patient and come to a conclusion. My question to you, Dr. Narasimhan sir, is how do you manage this patient? What are your treatment guidelines? How should we approach? What is a segmental way or protocol which you follow and you want that the whole India and the world should follow? Dr. Narasimhan sir. Thank you very much. This is a very important question. As was rightly echoed by Dr. Kothari and Dr. Sani, the major catastrophic complication of atrial fibrillation is a stroke. So when I see a patient with atrial fibrillation, the first priority is to prevent a stroke. And we have
very good drugs now, which are relatively safe compared to what we had about 20, 30 years ago. The blood thinners, if a patient is deemed to be at a risk of developing a stroke by clinical scoring, this is why clinical evaluation becomes important. So when you have atrial fibrillation patients, the rates are fast. Patient comes with very symptomatic atrial fibrillation, but his CHAD score may be 0. So he may not need anticoagulation. On the other hand, patients may have very minimal symptoms of atrial fibrillation, but if CHAD score is 3, that is, the risk of stroke is assessed to be 3, then you need to start the patient immediately on anticoagulation to prevent the stroke. Now, word of caution, people, especially public, have an important, a concept that aspirin is an anticoagulation. Aspirin is not an anticoagulant. It's a drug which interferes with a group of cells called platelets. So while aspirin is used in certain cardiac conditions, for atrial fibrillation, it is not useful. You have blood thinners called anticoagulants, which are very effective for that. The second is to control the patient's symptom. So if a patient has palpitation because of rapid heart rates, immediately you can give very effective drugs, either by mouth or by intravenous injection. Depending on the urgency of the situation, you control the heart rate. If a patient is in extremis, he comes to casualty collapsing, and you have very little time for medicines to act, you may have to give a little electric shock to bring the patient back to normal, because time is essence in these situations. So depending on clinical presentation and depending on the clinical risk score, number one is to prevent clot formation by giving blood thinners or anticoagulants. Number two, control symptoms by giving drugs to slow down the heart. Number three, why did this patient develop atrial fibrillation? As Dr. Sani was saying, we are treating patients, go through the history. Is it because of alcohol? Is it because of pneumonia? Is it because of thyroid? Or is it because of an undiagnosed valve disease? You evaluate the patient to find out the underlying cause and treat it. So broadly, there are 3 components. One is to prevent clot formation and stroke with blood thinners, control the heart rate with either medication or electrical therapy. Number 3 is to identify the underlying cause, sleep apnea or whatever it is, and treat the underlying cause so that the patient doesn't have progression of the disease. So all 3 are important. Number of times when you give drugs, patients are not responding, sir. Whether you give beta blockers or you give calcium channel blockers or you give drug like amiodarone. My question to you, Dr. Narasimha, is that we do or subject our patients number of times. Public should know what is this radio frequency ablation, what is cryoablation, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करना चाहिए, what are the indications, उसके फायदे क्या हैं, सक्सेस क्या है, and where the radio frequency ablation fails. We like you to highlight in public interest, Dr. Narasimhan, sir. Thank you very much. This is an important question. So when you have patients not responding to drug therapy, despite medical treatment, patient comes again and again with atrial fibrillation. Or when you give a drug, patients develop serious complications of the drug therapy. These are 2 main indications to consider catheter ablation. So you need to find out whether the atrial fibrillation is because of a transient reversible cause. If it is not so, first try drug therapy. If either drug therapy patient does not respond or he is intolerant to drug therapy with side effects, consider the second best, that is catheter ablation. Catheter ablation is a treatment where we go inside the heart with a small electrical tube, which is about 2 to 3 millimeter tip, very small, to identify the sources from where this chaotic atrial rhythms are coming out.
Now, most often they are coming from areas called as pulmonary veins. These are the vessels that connect the lung and the heart. So we need to electrically do a ablation is nothing but giving electrical current there so that that area stops conducting or producing electricity. So when we do this, approximately 70 to 80% of the people, you will be able to achieve good success if it's paroxysmal atrial fibrillation. So in patients with long duration atrial fibrillation, where patients have an underlying severe valvular disease or cardiomyopathy, the heart is very much enlarged. These patients are unlikely to respond to catheter ablation. In these patients, a more definitive treatment would be to put a pacemaker and ablate the AV node, which can be done with close to 95% success rate. And long-term recurrence is extremely low. This is a more definitive procedure, especially in elderly people, where you don't want them to come again and again for a procedure. I think it's a very, very important message given by Dr. Narasimhan. हर एक आदमी को जानकारी होना चाहिए कि एट्रियल फिब्रिलेशन का दवाई के अलावा हाई टेक ट्रीटमेंट भी है, और डॉक्टर नरसिम्हा ने बड़ा सिंपल भाषा में कहा कि उनको हम कहते हैं कैथेटर एब्लेशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। अगर उससे भी ना ठीक हो तो पेसमेकर भी लगा सकते हैं। उन्होंने एक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि अगर क्रॉनिक हो, जो लंबे समय से हो और बहुत ही पुराना हो, कई बार डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर हम पेसमेकर लगाएं तो उससे हम उनको अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। आई थिंक द नेक्स्ट पॉइंट to the same sequence I asked Dr. Viveka Kumar. I think Dr. Viveka, you also seen so many patients, and you do radio frequency ablation or cryo ablation in these patients. And of course, as pointed out by Dr. Narasimhan sir, that you also put pacemakers. But we see number of times there is an LA appendage, जो छोटी सी आउट पाउच होती है लेफ्ट एट्रियम से, जो लेफ्ट एट्रियम में एक चैम्बर है हार्ट का ऊपर का हिस्सा, उसमें से एक छोटा सा फिंगर जैसा जो प्रोजेक्शन होता है, कई बारी उसमें छोटे छोटे खून के थक्के फंस जाते हैं, जिसे हम क्लॉट कहते हैं या अपेंडिक्स थ्रोम्बस कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट का इलाज दवाइयों से भी कर सकते हैं, जो आप बताएंगे अभी, और अगर बार बार उसमें अपेंडिक्स में थ्रोम्बस चल जाए तो अपेंडिक्स को क्लोज कैसे करते हैं, उसके बारे में जानकारी जरा दीजिए पब्लिक को। डॉक्टर विवेक कुमार सर। या जो डॉक्टर चोपड़ा, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा। तो जैसे कि पूरे डिस्कशन में हम लोगों ने देखा, डॉक्टर नरसिम्हन ने भी बताया कि एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स में दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट वैसे होते हैं जिनमें कि हम स्ट्रगल करते हैं उनके फास्ट हार्ट रेट को कंट्रोल करने की। हृदय की गति इतनी ज्यादा तेज रहती है कि हम उसी में फंसे रहते हैं कि हृदय की गति को कैसे रोका जाए, और उसमें सबसे जो लास्ट रिसॉर्ट होता है उसमें एवी नोड को एब्लेट करते हैं। लेकिन कई ऐसे पेशेंट होते हैं करीब जिनमें कि हार्ट एट्रियल फिब्रिलेशन में रहते हैं वो, और हृदय की गति कंट्रोल में रहती है, लेकिन उनमें अगर आपने ब्लड थिनर देने की कोशिश की तो पेट से या ब्रेन में या कहीं भी बॉडी के ऑर्गन में ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो इन तरह के मरीजों में हम डिवाइस क्लोजर करते हैं, जिसको कि लेफ्ट एट्रियल अपेंडिक्स डिवाइस क्लोजर करते हैं। तो इसमें एक नीश इंडिकेशन है कि कुछ सबको हम अपेंडिक्स क्लोजर के लिए नहीं एडवाइस करते हैं। जिन पेशेंट्स में रिस्क ऑफ स्ट्रोक चैडवेस स्कोर ज्यादा होता है और रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हेस ब्लड स्कोर ज्यादा होता है, या जिनको पहले से खास करके इंट्राक्रेनियल या हेमरेज या ब्लीडिंग होती है, पहले हो चुकी है एक बार, तो उनमें ये रिस्क रहता है कि हम दोबारा ब्लड थिनर नहीं दे सकेंगे। तो उन मरीजों में हम लेफ्ट एट्रियल अपेंडिक्स क्लोजर करते हैं, और ये भी हम लोग ट्रांसइसोफेजियल एको के गाइडेंस में करते हैं। तो मतलब कि पेशेंट को हमें जनरल एनेस्थीसिया में टी प्रोब के गाइडेंस में पहले राइट साइड के हार्ट से हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, जिसको कि इंटर एट्रियल सेप्टल क्रॉस करना होता है, जिसको सेप्टल पंक्चर कहते हैं। और इस डिलीवरी डिवाइस होती है जिसको
लेफ्ट एट्रियल अपेंडिक्स के अंदर टारगेट करके एको गाइडेंस में और फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस में जो कैथ लैब में करते हैं, और इसका ऑलमोस्ट 98 to 95% सक्सेस रेट होता है। और इसमें ऐसा करने से हमें करीब 6 हफ्ते के बाद से ब्लड थिनर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफी उन लोगों के मरीजों में जिसमें कि ब्लड थिनर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें कर सकते हैं। और दूसरे उस तरह के मरीज होते हैं जिनमें कि ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर भी वो ब्लड थिनर नहीं लेना चाहते हैं और स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, तो उन मरीजों में भी करते हैं। लेकिन जिन मरीजों में एक बार और कोई ब्लड थिनर लेने का इंडिकेशन नहीं है, उनके लिए भी ये काफी अच्छा है। इनफैक्ट हमें कई ऐसे पेशेंट थे, हमारी मदर इन लॉ को आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनको भी एट्रियल फिब्रिलेशन था, और वो जब एंटीकोआगुलेशन ब्लीडिंग की वजह से वो बताती नहीं थी कि ब्लीडिंग होती, अपने आप वो 2-3 दिन के लिए रोक देती थी। उनको टैकीब्राडी सिंड्रोम था, तो हार्ट बीटिंग कभी बहुत स्लो हो जाती थी, कभी काफी फास्ट हो जाती थी। तो उनको एक माइनर स्ट्रोक आया और फिर उनको हमें एट्रियल अपेंडिक्स क्लोजर हमें अपनी मदर इन लॉ का करना पड़ा, और आज 4 साल हो गए और वो बिल्कुल ठीक चल रही है। और हार्ट बीटिंग स्लो के लिए हमें उनको लीडलेस पेसमेकर भी लगाना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि अगर सोसाइटी अवेयर है इसके बारे में कि ये सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, तो फिर वो एप्रोप्रिएट पेशेंट्स में एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करवा सकती हैं और हम कैटास्ट्रॉफी से बच सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह की जो मीटिंग्स हैं पब्लिक अवेयरनेस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर गिवन कंडीशन में तो ऐसा जो जितनी भी थेरेपीज आपने डिस्कस की यहाँ पे, हमें हर थेरेपी का हर पेशेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। हमें एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ट्रीटमेंट देखना होगा कि किस पेशेंट के लिए किस तरह का इलाज सूटेबल है। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, हमें उसमें ना एब्लेशन करना है, ना ही हमें अपेंडिक्स क्लोजर करना है, बल्कि उसके थायराइड की कंडीशन को ठीक करना है और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हमें कॉज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन देखना है और उसके ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को उस पेशेंट को देना होगा। I think it's a very brilliant expression, Dr. Vivek Kumar. What we learned here, the message is echocardiography is the cornerstone in the management of atrial fibrillation. बहुत important है। जब भी atrial fibrillation होगा तो हमें LA को देखना है, लेफ्ट एट्रियम को देखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को देखना है और वेल्व को देखना है। उसके लिए बिना एको के हमें जानकारी नहीं मिल सकती। One thing I learned from what Dr. Vivek Kumar has told, कि आजकल बहुत काम हो रहा है LA स्टिफनेस इंडेक्स के ऊपर, कि अगर लेफ्ट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल काफी स्टिफ हो अगर, तो उसमें रिकरेंस एट्रियल फिब्रिलेशन का काफी होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन के बावजूद भी। तो मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा एक प्रकाश डालें कि अगर LA ज्यादा स्टिफ हो, LA की वॉल्यूम ज्यादा हो, LA की साइज ज्यादा हो, LA के प्रेशर ज्यादा हो, तो LA स्टिफनेस का रूल क्या है? क्योंकि आजकल हम काफी LA स्ट्रेन भी करते हैं, जिनका LA स्ट्रेन कम हो उनके अंदर मात्रा बढ़ जाती है। तो बताएं थोड़ा इसके बारे में, इस स्टिफनेस के बारे में और रिकरेंस। क्योंकि आई रिमेम्बर वन पेशेंट, a doctor's wife, she underwent radio frequency ablation in one of the biggest hospitals. She had a recurrent, and that's how she came to me. So I was amazed at what I can do despite giving a full medical treatment and undergone a radio frequency ablation. And I found later on she had a marked stiffness of the left atrium. अब ऐसे stiffness हो उसमें क्या करना चाहिए? So ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जैसा कि डॉक्टर नरसिम्हन ने भी बताया कि अगर पैरोक्सिस्मल या कभी कभी होने वाला एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो तो सक्सेस रेट एट बेस्ट 70 to 80% का ही होता है। उसका रीजन यही है कि हम पूरी लेफ्ट एट्रियम की पैथोलॉजी को प्लेन एको से नहीं समझ पाते हैं। तो अगर प्रिडिक्टर्स होते हैं उसको स्कोरिंग करते हैं कि अगर लेफ्ट एट्रियम का साइज बड़ा है, लेफ्ट एट्रियम का जो स्ट्रेन पैटर्न अगर एबनॉर्मल है, अगर लेफ्ट एट्रियम में जैसे किसी की रोमैटिक मायोकार्डाइटिस होती है जिसमें कि स्कारिंग हो सकती है, कई लोगों को सार्कोइड की बीमारी, इन्फिल्ट्रेटिव डिजीजेस अगर होती हैं, तो पैटर्न एक्साइटेशन का एबनॉर्मल हो जा सकता है और एट्रियम की मसल्स हाइपर एक्साइटेबल हो सकती हैं और केओटिक रिदम कहीं भी आ सकता है। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे साथ कई पेशेंट आके कहते हैं
कि आप ये बताइए कि आपने हमारा ये एब्लेट कर दिया, अब सब ठीक हो गया, अब आप बताएं कि हमें कभी नहीं होगा, और ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे कभी ना हो। मैं कहता हूं आप अपनी एज रोक दें, अगर एजिंग नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं होगा। बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ेगी, स्कारिंग और ये सब सारी चीजें जो डीजेनरेटिव चेंजेस है वो होंगी, और फिर से एरिथमिक चेंजेस हो सकते हैं। तो एट्रियम को स्टडी करना काफी इम्पोर्टेंट है, और उससे ही पता चलता है कि हमारा सक्सेस रेट कितना होगा, रेफरेंस रेट कितना होगा। Thank you very much, Dr. Vivek Kumar. I think you brought very important points. Every patient should be meticulously analyzed. Dr. Sudhir Kothari, I think you come across many patients, and Dr. J.P. Sani, Dr. Narsimhan, Dr. Vivek Kumar, everybody mentioned that there is a load of blood thinners. And they mentioned a lot of caution. Antiplatelet drugs is not a blood thinner so far as atrial fibrillation is concerned. The blood thinner is anticoagulant. खून पतला करना है। खून पतला करने के लिए दो एजेंट होते हैं, या हम वारफेरिन यूज कर रहे हैं या एसिट्रॉम यूज कर रहे हैं, इसको VKA कहते हैं, विटामिन के एंटागोनिस्ट, या जो नवे नोवल एंटीकोगुलेंट है जिससे हम कहते हैं रेवरक्साबान और एफेक्साबान। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल के जमाने में अगर हमको पब्लिक को मैसेज देना है तो एट्रियल फिब्रिलेशन में बेस्ट एंटीकोगुलेंट अगर यूज करना है तो हमें कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करना होगा, और इसके बारे में सबसे बात करूंगा। हर एक आदमी को अपना ओपिनियन देना है, नीड टू मेक ए कंसेंसस। डॉक्टर सुधीर कोठारी सर। एक बात इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा कि जब स्ट्रोक हो जाता है उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन डिटेक्ट होने के बावजूद भी तुरंत एंटीकोएगुलेशन या खून पतला करने की दवाई शुरू नहीं कर सकते, बिकॉज ब्रेन में ब्लीडिंग होने का डर रहता है। इसीलिए उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस रहते हैं। अगर छोटा स्ट्रोक होता है तो हम 3 दिनों में भी कभी कभी शुरू करते हैं, लेकिन अगर बड़ा स्ट्रोक होता है तो कभी कभी 2-2 हफ्ता भी रुकना होता है, और उन 2 हफ्तों में फिर से स्ट्रोक होने की रिस्क होने के बावजूद भी हम एंटीकोएगुलेंट नहीं शुरू कर सकते। सो ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, बहुत लोगों को एस्पिरिन और क्लोपिडोजेल नाम की जो गोलियां है उसको भी खून पतला करने की दवाई है ऐसा बोल के चालू कर दिया जाता है। ये होता था पहले बिकॉज जो एंटीकोएगुलेंट है विटामिन के वाले, वो थोड़ा ट्रीटमेंट करने में मुश्किल होता था डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, बिकॉज वो गोलियां का असर कांस्टेंट नहीं रहता है। वो कभी ज्यादा खून पतला हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इसलिए बार बार खून चेक करना पड़ता है, और डोज कम ज्यादा एवरी कुछ दिनों में चेक करके वो करना पड़ता है। सो ये ट्रीटमेंट करना सबके लिए हेडेक हो जाता था, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। और फिर ब्लीडिंग ज्यादा हो गया तो ब्लीडिंग हो जाता है, कम हो गया तो स्ट्रोक फिर से हो जाता है, सो दवाई का फायदा नहीं होता है। लेकिन आजकल हमारे पास नए ये एंटीकोएगुलेंट मिलने लगे हैं, जैसे आपने बताया रिवारोक्साबैन, एपिक्साबैन, डाबिगेट्रन। ये इन गोलियों में डोज फिक्स्ड रहता है, बार बार खून चेक करना नहीं पड़ता है, और उनमें ब्लीडिंग की रिस्क भी कम हो जाती है। सो आजकल अगर पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, सो डेफिनेटली ये नई दवाइयां आर द चॉइस, बिकॉज आपको डर नहीं है ब्लीडिंग का उतना। ऑफ कोर्स ब्लीडिंग हो सकता है पर कम रिस्क है, और दूसरी बात आपको बार बार खून जाके चेक नहीं करना पड़ता है, बार बार कम ज्यादा डोज नहीं करना पड़ता है। सो ये दवाइयां आर बेटर। एक ध्यान में रखना चाहिए कि हर कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक के लिए ये फायदा नहीं होता है। सो अगर किसी को वाल्व बिटाया है और उसके कारण से उसको स्ट्रोक हो जाता है, उसको ये दवाइयां से नहीं फायदा होता है। उनको वारफेरिन की टाइप की गोली ही लेनी चाहिए। सो हर एक को ये दवाई नहीं है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन से अगर स्ट्रोक होता है तो डेफिनेटली ये दवाइयां लेनी चाहिए। थैंक यू। The point is very important, ladies and gentlemen. There should not be any controversy in the role of anticoagulants. We use warfarin and acetylcholinesterase in the past. Novak has come to stay. इसकी जानकारी होना चाहिए. Even in the rheumatic heart disease, if a person has got a mitral stenosis with atrial fibrillation,
In mild mitral stenosis, in moderate mitral stenosis, we use and recommend NOAC based on the guidelines. Otherwise, we may be subjected to a litigation. Severe mitral stenosis is still debatable because there is no data. So rheumatic heart disease also, we use NOAC and we don't use warfarin or we don't use acinocumarin. ये बहुत important information है. The second important information is all NOAC, yeah, rivaroxaban, for example. Why I say rivaroxaban? Because there are a lot of potentials of rivaroxaban. Because there is no pill load, there is no bill load, there is no memory load, there is no morbidity load, and there is no monitoring load, and there is no mortality load. There is a data. So बहुत studies हुई हुई और आज FDA ने अप्रूव कर दिया हर कंडीशन के अंदर रिवारोक्साबान, एपेक्साबान भी. ये दवाइयां ऐसी हैं जिनको बहुत यूज किया जाता है. रिवारोक्साबान की ब्यूटी क्या है कि बाउंड फॉर्म में भी फ्री फॉर्म में भी जो फैक्टर 10A होता है इंसान के अंदर है, वो 10A का एक्टिवेशन हो जाता है. उसको एंटागोनाइज करना हो तो रिवारोक्साबान दोनों को एंटागोनाइज करती है, फ्री फॉर्म में भी और जो बाइंड फॉर्म में भी. और उसकी प्रोटीन बॉन्डिंग बहुत हाई है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 10-12 घंटे है सिर्फ. तो सिंगल डोज देना पड़ता है तो मेमोरी रहती है, आदमी को याद रहती है और सिंगल डोज है एज कम्पेयर टू अदर नोवाक. तो ये बड़ी सेफ है और बहुत इफेक्टिव है. इसकी कंप्लायंस बेटर है, इसका एडहेरेंस बेटर है और रिवारोक्साबान काफी यूज होता है. I would like to have the opinion of both Dr. J.P. Sani as well as Dr. Narasimhan. What is their opinion for using NOAC? For how long should we use it? If a person has got a non-valvular atrial fibrillation, for example, how long should we use so that we prevent the future strokes or so-called SPAF? We use stroke prevention in atrial fibrillation. If there is a non-valvular atrial fibrillation, how long should we give? Dr. J.P. Sani first and then Dr. Narasimhan. थैंक यू डॉक्टर चोपड़ा. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट मैं जो डिस्कशन को थोड़ा कंटिन्यू कर रहा था कि हमने जो 50-60 साल तक वारफरिन विटामिन के एंटागोनिस्ट यूज की या एसिट्रोम यूज कर रहे थे, उससे हमने क्यों उसका पीछा छोड़ा? उसकी रीजन तो था जो डॉक्टर सुधीर ने अच्छे से बताया कि हमें INR की मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी, बड़ा मुश्किल काम था. दूसरा था कि ड्रग और डाइट इंटरेक्शन उस दवाई के साथ जरूरत पड़ता था. अगर आप साग खाते हो तो खून पतला मोटा हो जाता है, अगर पेन किलर लोगे, एंटीबायोटिक लोगे, खून पतला हो जाएगा, ब्लीडिंग के चांसेस होते थे. तो इस कारण पिछले 10 साल में रिसर्च आई और नोवाक्स का डेवलपमेंट हुआ. हमने सारे क्लिनिकल ट्रायल में भाग लिया इंडिया से और ये तीनों दवाइयां बन के आई और उसके बाद हमने डिसाइड किया. और शुरू में जब हमने रजिस्ट्री में देखा, गार्फिड रजिस्ट्री में, हमारी कंट्री में नोवाक्स का यूज कम था बिकॉज कॉस्ट ज्यादा थी. और आपने सही कहा कि अभी जेनरिक हो गए, कॉस्ट फैक्टर टेकन केयर ऑफ, तब दवाई सस्ती होगी और आम आदमी इसको यूज कर पा रहा है. तो उसके कारण ये जो रिवारोक्साबैन है, एपेक्साबैन और डेबिगार्ट्रेन ग्रुप ऑफ ड्रग्स अब अभी हम यूज कर पा रहे हैं. और उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दे आर better than warfarin or vitamin K antagonist. They are more effective. They are safer than vitamin K antagonist in terms of intracranial bleed. जो ब्रेन में ब्लीडिंग होने का रिस्क वारफरिन से या एसिट्रोम से होता था, इन दवाइयों के साथ नहीं होता. जो सेफ भी हैं और इफेक्टिव भी है. इसलिए देयर नो डाउट द फ्यूचर इज ओनली विद नोवाक्स, एक्सेप्ट 2 एरियाज यहाँ पे वैल्व चेंज हुआ है, मेटेलिक वैल्व है या अभी सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस जो वैल्व सुकड़ जाता है माइट्रल वैल्व के. इन 2 कंडीशन में अभी भी हमें वारफरिन को यूज करना है. बाकी सब कंडीशन में आई थिंक नोवाक्स कैन बी यूज्ड इन दिस पॉपुलेशन. नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ लॉन्ग शुड वी यूज? वंस वी हैव मेड अ डायग्नोसिस ऑफ atrial fibrillation and we have used CHA2DS score and we have identified that this patient needs anticoagulant, then हमें ये दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी है. लाइफ लॉन्ग लेनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है. क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स इस दवाई के साथ कभी छोड़ देते हैं, कभी डोज कम लेते हैं, तो फिर कॉम्प्लिकेशन होने का डर है. याद रखना चाहिए कि एट्रियल फिब्रिलेशन, नॉन वेल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन में, जो जिसको नॉन एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, उसमें एंटीकोगुलेंट देने के बावजूद भी जो प्रोटेक्शन है एम्बोलिज्म की वो 70% होती है, 100% नहीं होती है. तो ये भी लेके सोचना है. और इसलिए ये दवाई को हमें लाइफ लॉन्ग लेना है और इसमें कोई मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर सुधीर ने अभी बताया, very safe drug to be used and now it is very affordable to be used.
रिवारोक्साब डॉक्टर चोपड़ा ने डिटेल में बताया कि किस तरह से यूज अच्छा हो गया, बिकॉज वंस डे देनी पड़ती है, अदरवाइज अदर ड्रग्स भी इक्वली इफेक्टिव है और सेफ है. Thank you very much, Dr. J.P. Sani. I think you brought a very important point that these are safe and effective. कि जो lactating mother हो या pregnant lady हो, वहाँ नोवाक यूज नहीं करना, तो डेटा नहीं. Dr. Sani, you agree with that? Yes, I agree with that. The breastfeeding women and even during pregnancy, और फिर क्या होता है, breastfeeding बंद करने के बाद हम शुरू कर सकते हैं. Dr. Narasimhan, you want to say anything like in patient with malignancy, or if a patient got a phospholipid syndrome, should we use NOAC or we should not use NOAC? Or if a patient has got some other kind of diseases like collagen diseases or other problems where we should not use it, or all are the best indications for NOAC, or you have some specific experience of using NOAC, like rivaroxaban we've used in a lot of our patients during COVID time. Enormous. Right. So I think I'd like to have your words of wisdom, sir. This has emerged as a boon to a lot of physicians because it has increased the margin of safety, mainly because the dietary interactions are not there. But one of the important things we should realize is, as Dr. Sani was saying, it's a lifelong treatment with NOACs for atrial fibrillation. Having said that, this patient needs monitoring because as the patient becomes older, the kidney function comes down, the dose may have to be reduced over a period of time, and dose escalation is not possible with time. And similarly, in a lupus patient, when the kidney function improves, you may have to increase the dose. So again, this needs to be individualized. There are certain rare situations where this safety is not proven, as we discussed: severe mitral stenosis, prosthetic valve, and patients with phospholipid syndrome. These are situations where the good old warfarin needs to be carefully titrated. I think it's a very important point, ladies and gentlemen, and every person of the expert panel has agreed. We are not to use in certain situations, like किसी को severe rheumatic heart disease हो या कोई patient को prosthetic valve लगाओ metallic type, उसमें यूज नहीं करना है. और अभी डॉक्टर नरसिम्हा ने कहा कि किसी को एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो, उसमें भी यूज नहीं करना है. प्रेगनेंसी में लैक्टेटिंग मदर में बड़ा केयरफुल रहना है. और गाइडलाइन डॉक्टर सुधीर ने बताया कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. डॉक्टर सुधीर, यू वांट टू से समथिंग? यस सर, प्लीज. देयर इज एक चीज हो गई है आजकल कि कंपेयर टू जो पुराने एंटीकोएगुलेंट्स है, उसके हिसाब से ये एंटीकोएगुलेंट्स यूज करना डॉक्टर के लिए भी बहुत आसान हो गया है. इसलिए बहुत डॉक्टर जब तक अभी प्रूवन भी नहीं है कि नोएक इस सिचुएशन में सेफ है क्या, इफेक्टिव है क्या, वो यूज करते. वो टेंडेंसी वन हैज टू बी केयरफुल. सो वो आपने बताया है कि जब एट्रियल फिब्रिलेशन है तो डेफिनेटली यूज करो. लेकिन अगर पेशेंट को अभी आजकल एक नया ब्रेन की बीमारी, हम उसके बारे में नहीं बोल रहे, बट सीवीएसटी बोलते हैं, यानी ब्रेन में वेन जब क्लॉट होता है. पहले हमारे पास सिर्फ वॉरफेरिन ही था, लेकिन अभी वो प्रूव हो गया कि यू कैन यूज नोएक्स इन दैट सिचुएशन ऑल्सो. लेकिन अगर किसी को थ्रोम्बोफिलिया है, उसका खून अपने आप क्लॉट हो जाता है, किसी को एप्ला है या बहुत दूसरी बीमारियां जिसमें हम वॉरफेरिन यूज करते, वो डायरेक्टली हम अभी वॉरफेरिन नहीं, बंद खराब गोली है और अभी नोएक यूज कर, ऐसा टेंडेंसी नहीं करनी चाहिए. I think this is a very important point because in most of the indications where warfarin was used, we are all shifting towards NOAC. With this, we conclude, ladies and gentlemen. I want to express my heartfelt gratitude to the most eminent faculty there, Dr. J.P. Sani, Dr. Narasimhan, Dr. Viveka Kumar, and Dr. Sudhir Kothari. They did a wonderful job. Right from the time when people doesn't know anything about atrial fibrillation, till having an awareness. And how to detect is another awareness. How do we diagnose clinically is another awareness. And then by various methods and gadgets. And then we discuss about the treatment and the high-tech treatment.
how to go for radio frequency ablation or by early appendage closure. And lastly, NOAC. But NOAC is the revolution. It's a game changer. The future is going to be different. If you use warfarin and use not NOAC, you may undergo litigation by National Board of Commission. This is a very important message I'm giving you. I'm a member of it. I know what exactly it is to think of. If somebody can litigate us that this patient was given warfarin while the NOAC is available, things may change. So we need to see what is existing based on the data. And data-based approach to a patient is a real approach for atrial fibrillation. May I appeal to the expert panel that we must, on behalf of so-called Atrial Fibrillation Association of India, or on behalf of a group of today, launch something like Atrial Fibrillation Care app. And we have with us IPCA pharmaceutical company, and we have with us Johnny Edwin. I'm sure he can help us. We will be the first person in the world to launch a AF app where we can discuss everything, whatever we mentioned. And the second thing I wanted to highlight is that I'm sure Johnny is listening to me. We must have a paper, a white paper, and we must make the leader as Dr. Narasimhan, who should lead and create a white paper and publish in a journal like JAPI, where the viewership is more, maybe 24,000, 25,000, something on how to manage atrial fibrillation on everything what we discussed. Take opinion of Dr. Kothari, Dr. J.P. Sani, Dr. Vivek Kumar, and everyone, and give some guidelines so that Rivaroxaban or Apixaban, whatever, or in different coagulopathies, maybe COVID coagulopathy and non-COVID coagulopathy, how long to use, there should not be any dilemma. We have to escape from medical legal litigation. Future is going to be different. There is no MCI now. There is only DMC, which is low profile, I'm sure. Dr. J.P. Sani is a member of DMC. I feel very safe with J.P. Sani representing us. In National Medical Commission, we have only one person from Delhi, that is Balram Bhargav. And there is one guy from, I think, from Rajasthan somewhere, a cardiologist. So only two cardiologists who are a part of our society who are there. Because sometimes people who are non-cardiologists, they take abrupt decisions. So we need to work hard and create our guidelines. So that becomes a source for us. We show it to the journal advocates and all. See, this is what has been published and we follow these guidelines. So I need your help, an app, as well as to launch a white paper on this. I am very fond of digital media and television media. I don't know why we were not there before. I thought sometime retrospectively, 40 years of my life I spent in conferences, but the audience was very limited. We must go to public. That is a continuing medical education. That has to continue in a robust way, but we must go to the masses. It is happening in ACC, it is happening in AHA, it is happening in European Society of Cardiology. Why not we should go to masses in crores and disseminate the information so that we also become as strong as what Americans or Europeans are. And we must create local impact globally. To conclude, ladies and gentlemen, I have one statement to say: we must inform, perform, reform, and transform the whole world with the atrial fibrillation to no or low atrial fibrillation and prevent thromboembolic complications by enhancing the use of NOAC. A time has come we should consider very seriously, and we should not have any ambiguity in our mind. We should have consensus. That's how I took the opinion of everyone to have a consensus and bring out the paper or a white paper. I express my heartfelt gratitude and thanks again to the eminent faculty. As I mentioned before, Dr. J.P. Sani, Dr. Narasimhan, Dr. Vivek Kumar, and Dr. Sudhir Kothari, and our partner, academic partner, IPCA, especially Dr. Johnny Edwin, Burshadi, and Asha Kapoor. And with this, I hand over the mic to Johnny Edwin to propose a formal vote of thanks. Johnny. Thank you, doctors, for this great interaction, which was very useful for the public and on the launch of this atrial fibrillation care.
So our heartfelt thanks to Dr. H.K. Chopra for the wonderful moderation, as usual, from his point, and making this program more lively. And of course, Dr. J.P. Sani for the valuable comments, Dr. Narasimhan, requesting him also to take the lead in the publishing the white paper on the same of the on the discussions today. Dr. Sujit Kodari, despite a very, very busy schedule, I mean, giving his consent to be here today, and Dr. Vivek Kumar, of course, he's been traveling, but yes, being a part of the program today with us. And thank you, sir. And thanks, Famhealth, being a media partner always with us. Thank you once again. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर